Hi guys, this is Ritvik here, Ritvik Dhanjani, and you're watching Viral Bollywood. Hi, I'm Shilpa Shetty Kundra, and you're watching Viral Bollywood. So, ladies and gentlemen, प्यार से आप लोगों को मीडिया वाले बुलाते हैं. मीडिया वालों, कैसे हो आप लोग? बोर हो रहे हो? अरे इसीलिए तो हमको पैसे मिलते हैं. कैसे हो मीडिया वालों? कम ऑन, मेक सम नॉइज. थोड़ी सी एनर्जी आ जाए आप लोगों में. क्योंकि आप लोगों में थोड़ी एनर्जी आएगी तो हमारे अच्छे अच्छे आर्टिकल छपेंगे. इट्स एज सिंपल एज दैट. आप लोगों से हमें जितना प्यार है उतना ही डर भी है. But in any case, ladies and gentlemen, welcome to the press conference of Super Dancer. Everybody make some noise. Give it a round of applause for Super Dancer. तो मैं आप लोगों को बता दूं सुपर डांसर क्या है. आप सब लोग जानते हैं, अ डांस रियलिटी शो अबाउट द फ्यूचर. डांस का कल इज सुपर डांसर. हमारे आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो हमसे बहुत आगे हैं. कई मायनों में, कई सारी चीजों में हमसे इतने आगे कि वो हमारे पिताजी, हमारे दादाजी भी हैं. सो बिलीव मी, जहां पर हम जब ऑडिशंस कर रहे हैं तो वी आर एक्चुअली सर्चिंग फॉर हमारा डांस का कल, हमारे डांस का फ्यूचर. हमारे वो सुपर डांसर्स जिनमें ना सिर्फ सुपर मूव्स, ना सिर्फ सुपर एटीट्यूड, ना सिर्फ सुपर एक्सप्रेशन, बट एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, जो क्वालिटी पाई जाती है ऋत्विक धनजानी में. दैट्स अ सुपर एंटरटेनर. थैंक यू. इतनी हंसी, वाह मुझे कितनी खुशी हुई, इतना अच्छा लगा, इतनी हंसी सुन के बड़ा मजा आया. बट इन एनी केस, सो ये है सुपर डांसर. और सुपर डांसर के बारे में आपको और कई सारी चीजें बताने के लिए हम बुलाना चाहते हैं. सबसे पहले मैं स्टेज पे बुलाना चाहता हूं द मैन हिमसेल्फ, द पिलर ऑफ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव इट अप फॉर द बिजनेस हेड मिस्टर दानिश खान. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज. Thank you so वेलकम much. एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सुपर डांसर. एंड हमारे जो प्यारे मीडिया वाले, इनको जरा आप अपने शब्दों में बताएं व्हाट सुपर डांसर मीन्स टू अस एंड टू सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन. There are better people to tell about Super Dancer. जी. We have creative heads, the judges, and Ritvik. Apart from some kids will Ji. come and display what Super Dancer is all about. But I'll just tell you a little bit about Sony and why we are doing Super Dancer. Traditionally, if you look at this is 21st year of Sony, and Sony has always been a kind of pioneer in terms of talent show. We were the first one to get Indian Idol, followed it up with KBC and a lot of other shows. Last few years, I think the talent on Sony talent shows were not consistent. What I'm here to promise you is that starting with Super Dancer, Sony will be completely consistent in terms of bringing the fresh and the best talent on a platform called Sony Entertainment Television quarter after quarter. We start with Super Dancer this September, and to say more, I'll call my creative heads to speak a little bit about Super Dancer. But after Super Dancer, we'll have Indian Idol. After Indian Idol, we have entertainment के लिए कुछ भी करेगा, and we'll have KBC soon. All we are saying is that Sony will try its best to be a platform where common man with great uncommon or great talent can come showcase their talent and become and get what we say, will give them a mauka, will give them a chance to be hero on national stage. And that is the focus of a slot that we are building between 8 to 9. Like if you look at it, the weekend, which Sony was always known for a weekend, lost the leadership for some time. Right now we are number 2 on weekend, and hopefully with Super Dancer we should be number 1 channel on weekend. Kapil is doing extremely well. At 9, CID and Crime Patrol continues to entertain people. 8 o'clock will be a slot where we will showcase the best of the talent. And this journey will start with Super Dancer. I'm very excited. I've seen a little bit of the content. I've seen a little bit of intent behind the show. And seriously, it's a show that's going to be
Sony's signature show, and hopefully year on year we'll see some of the best talent of India, dancing talent of India coming and showcasing on Super Dancer. To say more, I'll call three people, and I would personally like to introduce them. Three people whom I consider are joint fathers of Indian dancing. We have Ashish Govalkar, we have Ranjit Thakur, and we have Hemant. I'll tell you a little bit about them. They have worked in different platforms. They have given hit across different channels. But between them, the understanding of this form, especially on talent reality show, I think there is no three individual in this country who knows about this space better than them. So rather than me saying anything more, just to add a little bit about this trio, I will want to tell you कि अगर हिंदुस्तान में डांसिंग की शक्ल किसी ने बदली है, तो that's this trio. Ladies and gentlemen, please give it up for them. Please, can we have you on stage, sir? Please. Ashish works with me on Sony. He's the senior creative director. Ranjit and Hemant run a very successful production company called Frames. And between them, I think we'll have a great show. Thank you, Danish. It actually makes my life little more difficult because with the expectation build हो गया तो deliver करना पड़ेगा. But as he said that we've always tried to make shows that are entertaining, that are honest. Sorry? Flash, okay. हाँ कलर वाला छोड़ो पांडे जी. ठीक है. सो मैं क्या बोल रहा था कि हमने हमेशा शोज़ वो तो टैलेंट का काम टैलेंट कर लेता है. शो में जो चीज़ें हैं, जो जजिंग है या जो जिस तरह से फॉर्मेटिंग होता है, उसमें ऑनेस्टी रखते हैं. उसमें कोशिश ये रहती है कि लोगों के दिलों तक छुए. और जैसा दानिश हमेशा कहते हैं कि एक होलसम एंटरटेनमेंट होता है जिसमें थोड़ा हंसना, गाना, रोना सब कुछ मिलता है. और उसके बहाने अगर कुछ टैलेंट देश के सामने जो छुपा हुआ टैलेंट बाहर आए तो उसमें कोई बुराई नहीं है. जैसा दानिश कह रहे थे कि टैलेंट शोज़ सोनी पे काफ़ी दे पायनियर्स इन ब्रिंगिंग टैलेंट शोज़, चाहे वो आइडल हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा हो या कॉमेडी सर्कस हो, ये सारे टैलेंट बेस्ड शोज़ थे. और जैसा इन्होंने कहा, हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सारे वापस रिवाइव हों और किसी न किसी रूप में वापस आप तक पहुँचे. जहाँ तक रही बात सुपर डांसर की, तो सुपर डांसर जो शो है उसके बारे में जैसे टैलेंट अभी बच्चे आएंगे वो आपके सामने परफॉर्म करेंगे. आई होप आप आपको अच्छा लगेगा. कुछ प्रोमोज में भी आपने थोड़ी बहुत झलकियाँ देखी हैं. और साथ में हमारे 3 सीजन जजेस हैं जिन्होंने डांस को एक मतलब शिल्पा जी और गीता जी ने डांस को नई परिभाषा दी है. वी वर्कड विद ऑल द 3 ऑफ देम एंड दे विल कम एंड टॉक अबाउट इट. ऑन सुपर डांसर एक ही चीज़ मैं कहूँगा कि इसकी परिकल्पना जो कंसेप्चुलाइजेशन हुआ था वो इस चीज़ छोटी सी बात को लेके हुआ था कि हम सब लोगों में, हम सब में वी आर ऑल बॉर्न विद सुपर पावर्स. वी आर ऑल बॉर्न विद सम स्पेशल क्वालिटी दैट ऑल ऑफ अस हैव, राइट. होता ये है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, समाज, हमारे माता पिता, हमारे जो परवरिश है वो हमें बोलती भाई ऐसा करो, ये सही है, ये गलत है. और उस सही गलत के झमेले में हमारी वो सुपर पावर्स जो होती हैं वो धीरे धीरे कम हो जाती हैं. और हम लोग सब वी ऑल ऑफ अस ट्राई एंड बिकम मोर ऑफ द सेम, जिसको बोलते हैं कि एक जैसे सब हो. एटलीस्ट प्रयास रहता है कि सब एक जैसे बन जाए, है ना. लेकिन जो लोग उस लीक को तोड़ देते हैं या उस रट को जो तोड़ देते हैं वो महान बन जाते हैं, जिनको बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. आई विल नॉट स्पेंड टाइम इन गिविंग दोज एग्जाम्पल्स. सो वी आर बेसिकली सेइंग दैट एवरी किड हैज़ दैट स्पेशल पावर, दैट सुपर पावर दैट दे हैव. एंड थ्रू दिस शो वी वुड लाइक टू होन, हम उस सुपर पावर जो उनकी जो भी स्किल है, चाहे वो एंड ऑफ कोर्स डांस के माध्यम से. सो जैसे डांस के लिए अगर हम थोड़ा उसमें डिटेल में जाएं तो जैसे कोई हिप हॉप में बहुत अच्छा करता है, कोई कंटेम्प्रेरी बहुत अच्छा करता है, कोई क्लासिकल में बहुत अच्छा है. डांस शो जो अभी तक जितने भी आए हैं, एंड एज दानिश सेड दैट वी बीन पार्ट ऑफ मोस्ट ऑफ देम, लेकिन उसमें एक वर्सेटैलिटी को महत्व दिया जाता है कि भाई अगर आप ये तो अच्छा से करते हैं लेकिन आप ये भी करिए. इस शो के ज़रिए जहाँ वर्सेटैलिटी ऑफ कोर्स इज़ इम्पॉर्टेंट, सबको सब चीज़ आनी चाहिए, लेकिन हर किसी की एक यूनिक डांसिंग पर्सनालिटी होती है जो डांस को लेकर उनकी सुपर पावर है. सो हम चाहते हैं कि उसको कैसे बढ़ाएं, उभारें,
सो दैट वो उसी चीज़ में स्पेशलाइज, जैसे बोलते हैं ना कि आजकल सुपर स्पेशलाइजेशन का ज़माना है, तो उस सुपर स्पेशलाइजेशन को कैसे बच्चे अचीव कर सकते हैं। और उस एज में क्या होता है ना, योर आपका दिमाग बहुत ही ज़्यादा अनकरप्टेड जिसको बोलते हैं वैसा रहता है, तो आप उसको बहुत अच्छे तरह से कर सकते हैं। और वो करने के लिए पहली बार ऑन अ डांस शो वी विल हैव डेडिकेटेड कोरियोग्राफर्स जो इन द फॉर्म ऑफ देयर टीचर्स विल उनसे कंधे से कंधा मिला के उनके साथ उनकी जो कमियां और जो उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस है उनको बराबर तरह से ढाल के और एक परिपक्व डांसर जिसको हम कह रहे हैं डांस का कल बन सके, इस तरह के लेवल तक लेके आएंगे। ऑफ कोर्स आई ऑलवेज मेंटेन दैट डांस शोज या ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स आर अ मीडियम. We just provide a medium. We are not there. It's like when you graduate, nobody guarantees you of job. So all these reality shows, they are not a guarantee for success. But what they can do is they can give you opportunity for you to shine. And then of course it's all up to what you eventually will become. So that's about it. I think I'll give it to Ranjit. Thank you. Thank you, Danish sir, Ashish. And thank you so much for our collaboration with Sony and your faith in us. And hopefully we can deliver a very, very good show, which we always been trying and striving very hard to do. And thank you so much for this, sir. Thanks a lot. Hemant. Hi, saying the same thing. Thank you, Danesh sir, for such a high-pressure introduction. And obviously, we will try our best to live up to it. We've managed to find best of the talent which we feel should be entertaining. Choreographers, in terms of the 12 choreographers that we are going to present, they are different, they're unique. They would be presenting some unique acts. I'm sure the rest is something that you will decide, audiences will decide. And we hope that, as always, you like the format that we present. Thank you. Thank you. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी. एक बार जोरदार तालियां इनके लिए. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. आई थिंक हम सब लोग शायद इस चीज से वाकिफ हैं कि हिंदुस्तान में सबसे पहला द मैसिव डांस रियलिटी शो था, वो था बूगी वूगी. हम सब जानते थे. आई थिंक हम सुपर डांसर के साथ सिर्फ लोगों को ये याद दिला रहे हैं कि सोनी टेलीविजन आज भी वही प्लेटफॉर्म है जो आपको विच गिव्स यू वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट्स. सो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव हियर. चलिए, मूविंग अहेड. अब बारी आती है उन बच्चों की जिनमें हम डांस का कल ढूंढ रहे हैं, उन बच्चों की, उस फ्यूचर की जिसे हम सुपर डांसर कहेंगे. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं हमारे कुछ चंद ऐसे चुनिंदा सुपर डांसर्स जो बिलीव मी आपको हैरान कर देंगे, चकाचौंध कर देंगे. छोटे छोटे वर्ड्स हैं, बट आई थिंक यू शुड जस्ट look out for it. Just dekho and then judge it for yourself. Ladies and gentlemen, give it up for our first super dancer. She is yes. So ladies and gentlemen, our first super dancer coming up on stage is Tanya. Give it up for Tanya, everybody. Just my job, ladies and gentlemen. अब हम आपको मिलाने जा रहे हैं हमारे जजेस से. So सबसे पहले one of my favorites, the sweetheart, the cutest. वो जिनको सब माँ के नाम से जानते हैं, हालांकि वो माँ नहीं है, वो गीता माँ है. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर नन अदर देन गीता कपूर. लेडीज एंड जेंटलमैन, गीता कपूर. फोटो खींचो जल्दी. गीता कपूर कितनी सुंदर लग रही है आज. वाह मैम, ऐसे पोज थोड़ा सा फोटोज के लिए. ओके, दैट्स गीता कपूर. दैट्स आवर फर्स्ट जज, लेडीज एंड जेंटलमैन. इनके बाद हम बुलाना चाहते हैं हमारे जो सेट के, हमारे जो जजेस पैनल हैं उनके मैं क्या कहूंगा, द नॉटी फेलो. एक वो जो एक्चुअली इन तीनों जजेस में सबसे छोटे बच्चे हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, नन अदर देन द एज डायरेक्टर अनुराग बासु. सर अभी कुछ नहीं करना सर, ये फोटो खींचेंगे सर अभी. सर बर्फी
नहीं ओके सर बर्फी नहीं तो जग्गा जासूस All right, ladies and gentlemen, one more, please. Once more. All right, so that's Anurag Basu, ladies and gentlemen. Give it up for Anurag sir. एक बार, come on, please. सर ये इनसे करवाना पड़ता सर. क्या करूं मैं? मीडिया वाले ना नमस्कार सर. बड़े अच्छे लोग हैं आप. तो okay, moving ahead to the beauty of the show. Well, हाँ साफ करना पड़ेगा सर. मैं एक मिनट थोड़ा सा. Okay, एक काम करते हैं. Yes, हमारी the beautiful, the evergreen, the gorgeous, the vivacious. इनके बारे में कितनी सारी चीजें हम का एक बहुत सारी चीजें कम है. Forget it. हम ज्यादा ना कहते हुए उनका स्वागत करते हैं. Ladies and gentlemen, give it up for none other than Ritwik Dhanjani. Sorry, it was bad. But ladies and gentlemen, give it up for Shilpa Shetty. क्या बहुत खर्चा किया तुम लोगों ने. Okay, ladies and gentlemen, ये है हमारे तीनों जजेस के लिए एक बार जोरदार तालियां, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, क्योंकि ये है जो आपको देंगे हमारा डांस का कल. सो हम आगे बढ़े और इनको सवाल पूछने को कहें उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शिल्पा मैम, यू हैव टू टेल अस कि सुपर डांसर, you're one of the very important 3 pillars of the show. So what are you expecting out of the show? इतने सारे डांस रियलिटी शोज, इतने सारे शोज के बाद, now you know super dancer. So what is it that you want out of the super dancer that's going to be? मैं क्या चाहती हूँ? Yes. डांस का कल. As simple as that. I know. No, I mean on a serious note, very good evening to members of the press. और हाँ, ये शो मैंने बार बार दोहराया है कि अलग है मेरे लिए. अलग इसलिए है क्योंकि अब तक जो भी मैंने शोज़ जज किए हैं, जजिंग के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, और जो परफॉर्म करते हैं वो लोग भी अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हैं. इस शो में ये खासियत है कि जो परफॉर्मर्स हैं हमारे इसका इस्तेमाल करते हैं, तो उनको जज करना और भी मुश्किल हो जाता है. तो इट्स सो अमेजिंग. आई रियली विश दैट वी ऑल थॉट विद आवर हार्ट्स एंड you actually learn so much goodness from these beautiful children who are only full of heart and love. And जो वो कर रहे हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, वो भी उनके दिल से आ रहा है. और मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं इस काबिल ही नहीं हूँ उनको जज करने के लिए. ये मैं बहुत बारी सोचती हूँ. और आई एम श्योर दैट यू नो बीइंग जजेस, and I would take the carte blanche even to say that about Anurag and Geeta. And Geeta and Anurag, I think, have had बहुत सारा experience, you know, in terms of judging children. लेकिन I'm sure उनके लिए भी बहुत मुश्किल है बच्चों को जज करना. तो मेरे लिए एक learning curve है. बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है मुझे इन बच्चों से. कितना झूठ बोलेंगे यार. अरे यार सच्ची बोल रही हूँ यार. ये हमारा काम आसान हो गई है. नहीं बिल्कुल नहीं. मैं बोल रही हूँ कि हम सबके लिए बहुत मुश्किल है. लेकिन ये लोग मुझे डांटते रहते कि मैं एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट पे मैं रोना शुरू कर देती हूँ. हाँ सी. नहीं, ये बात बिल्कुल सच है. हमने जितनी बार भी ऑडिशंस में देखा ना, इनको हर बच्चे में वो ना बोलने से पहले खुद रो देती है. ना कैसे बोलेंगी. इतना मुश्किल होता है पता है ना बोलना. इट्स सो हार्ड. तो एक्चुअली हमारे जो टॉप 12 या टॉप 15 होते हैं, वैसे हमारे टॉप 100 होने वाले हैं इस बार. हैं होने वाले हैं. क्योंकि एक शो पे ना आप जीते थे जहाँ पे मैं जज थी, और मैंने बहुत रूट किया था तुम्हारे और आशा के लिए. कितनी अच्छी जज है. नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा. सारे बच्चे सबसे ज्यादा खुश हैं इनसे. मैं पॉइंट्स वापस ले रही हूँ. But alright, अच्छा गीता माँ, now not गीता माँ but गीता कपूर. So मैम आप बताएं कि you have judged so many shows across platforms और इतने सारे
बच्चों को डांस करते हुए, बच्चों बड़ों सबको डांस करते हुए देखने के बाद नाउ सुपर डांसर, सो व्हाट नाउ? अब इसके आगे डांस का कल क्या? मैंने भी सोचा था कि अब क्या लेकिन इट्स जस्ट अमेजिंग कि इतना टैलेंट है इंडिया में एंड इट्स अमेजिंग कि आप जितने प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करो ऐसा लगता है कम है बिकॉज द मोर आई सी द मोर आई गेट. मुझे इस शो पे आके और टैलेंट दिखा है एंड वाकई में डांस का कल दिखा है. सो आई थिंक इट्स अमेजिंग दैट दिस प्लेटफॉर्म हैज बीन क्रिएटेड नाउ. Wow, So, yeah. wow, fantastic. All right, दादा बोल. आप बताएं कि व्हाट आपने भी इसके पहले बच्चों का एक शो जज किया, मेरे साथ ही जज किया सर, मैं वहाँ पे भी एंकर था, बट वो एक अलग शो, ये एक अलग प्लेटफॉर्म, वहाँ पर एक्टिंग, यहाँ पर डांसिंग. सो नाउ एज अ डांसर, सुपर डांसर, डांस का कल, डांस का फ्यूचर, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इतनी सारी चीजें देख ली, तो आपके हिसाब से डांस का फ्यूचर क्या है इन बच्चों में स्पेसिफिकली? यार आई एम द लास्ट पर्सन टू से दैट बिकॉज ये डांस का आज है, ये डांस का कल ढूंढ रहे हैं और मैं डांस का बीता हुआ कल हूँ. तो आई एम द पास्ट. लेकिन देख, मुझे तो यही उम्मीद है इस शो से कि एक सब बच्चों के साथ कनेक्शन हो, और अभी से हो गया है. अभी से दिल जुड़ गए हैं बच्चों के साथ, ताकि मतलब जब लास्ट शो जब खत्म हो रहा होता है ना, बहुत दुख होता है. लेकिन वो मीठा दर्द होता है. सब बच्चों के इतना कनेक्शन होता है, सारे अपने बच्चे लगते हैं. इतनी सारी कहानियाँ, इतने सारे लोग कहाँ कहाँ से आए हैं. बड़ा इंस्पायरिंग होता है ऐसे शो में जज बनना. और मैं तो ऑडियंस की छवि हूँ वहाँ पे. डांस करना तो मुझे मतलब बहुत कम आता है. तो आई एम द लास्ट पर्सन टू जज हाउ दे आर डांसिंग, हाउ दे आर नॉट डांसिंग, क्या गलती है. उसके लिए शिल्पा और गीता हैं. लेकिन इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ, ऐसे छोटे से हम्बल बैकग्राउंड में पापा मजदूर हैं, बच्चा डांस क्लास जाता है, डांस करता है. डांस क्यों करता है? ताकि अपनी मिजरी से भाग सके, खुशी मिले उसे. वो डांस शो में आने के लिए डांस नहीं करता है. ये तो बस हुआ ये कि हम वहाँ ऑडिशन करने के वो लोग मिल गए. तो इतनी इंस्पायरिंग कहानियाँ मिलती हैं यार. मुझे तो, मैं तो ज़्यादा लेके जाऊंगा इस शो से जितना कि मैं दूंगा. आई एम बीन सेल्फिश इन दिस शो. सो स्वीट, सो स्वीट. वेल, सो ये थे हमारे जजेस के वर्ड्स, बट आप लोग कुछ पूछें और आप लोग इस शो के बारे में कुछ जानना चाहें, उससे पहले मैं आपको इस शो की एक छोटी सी झलकी दिखाना चाहता हूं. सो प्लीज हैव अ लुक. नो, हम जानना चाहते हैं, व्हाई डू यू वांट टू किल योरसेल्फ, शिल्पा मैम? I forgot that I was on TV. ओके, सो अब मे आई प्लीज रिक्वेस्ट हमारे जो बाकी के क्रिएटिव हेड्स एंड द बिजनेस डायरेक्टर, सर प्लीज कैन वी हैव यू ऑन स्टेज? And I think now it should be open for media to ask questions. See, they have to have some X factor. और कहते हैं ना, जब हम लोग कह रहे हैं कि हमें डांस का फ्यूचर चाहिए, there has to be a style, an inherent style in that child. और ऐसे ऐसे भलते भलते स्टाइल देखने को मिला है हम लोगों को इस शो पे. I didn't even know, we don't even know what to call those dance forms. So it's going to be a great introduction even for the audiences. कि अरे यार ये कैसे डांस कर रहा है. एक तो बच्चा सिर्फ नाड़े के साथ डांस करता है. He comes in the chaddi and he's just dancing with a nada. That's his prop. No, I'm serious. और इतने confidently नाचता है कि we didn't have a choice but to just select him. और एक मतलब कुछ मैंने ब्रेक डांस देखा है, ये कुछ और ही. हाँ, मतलब मासूम एक लड़का है, बिल्कुल लड़की है, सॉरी, बट शी इज़ लाइक अनबिलीवेबल. और जैसे अनुराग दा ने कहा, they are so, I mean, many of them are not even privileged कि उन्हें डांस क्लासेस जाने का या डांस टीचर्स उनको सिखा रहे, ऐसा भी नहीं है. they are like, you know, laborers children, हाउस हेल्प के बच्चे जिनके पास मतलब they don't even have clothes, their parents don't even have the money to buy them clothes. वो borrow करके they've won something and they've come and they've performed at the auditions. तो imagine अगर उनको ट्रेन किया जाए तो उनका लेवल क्या हो सकता है. So that's what we are amazed with. So we have actually got what we were looking for. अब तो ऑडियंसेस के ऊपर है कि उनको हमारा सिलेक्शन अच्छा लगे, और उस लॉट में से सीव करके जो हमने मतलब मेगा ऑडिशंस के लिए तैयार किया हुआ है, उन सिलेक्शंस को बस ऑडियंसेस को वो पसंद आ जाए. Ma'am, as a part of your growing up, who were your idols as dancers? Did you idolize anyone?
I loved Mithunda. Disco dancer was legendary, and my favorite is always Sridevi. Hi, my question is to Danish. The show really looks great in terms of what we have seen in the trailer. What is the budget? Some light that you can throw on that? Budget? Wow. I won't like to revisit it. आप सोनी में काम करना चाहती हैं? Very sweet of you. Unfortunately, I can't reveal the number, but yeah, it's decent enough for Ranjit to be happy and we to afford all this big judge panel, you know. I was going to say they spent a lot on me. He only pointed at you. I hope you know that. बस That's it. सो स्वीट मतलब बजट नहीं बताया तो सवाल नहीं पूछेंगे अनुराग हेलो आपसे अगर पूछे कि जैसे हर एक बच्चे की क्वालिटी बताए, एक सुपर हीरो क्वालिटी बताई, कोई नौटंकी क्वीन है या कोई मतलब कोई क्यूटी डांसर है, तो आप अगर आप अपने तीनों को आप कोई ना कोई क्वालिटी बताना चाहे डांस के मामले में, आप क्या हाँ नेम अ क्वालिटी ऑफ ईयर, आप तीनों क्या करें एक डांस की क्वालिटी की बात करें तो? एक डांस की क्वालिटी यस जस्ट लाइक अ सुपर हीरो, जैसे उसमें बताया गया ड्रामा क्वीन होगी Like a super quality. या सुपर क्वालिटी ऑफ देम आपकी भी। और मेरी भी। मेरी तो आप इनसे पूछिए ना, मैं अपनी थोड़ी मैं अच्छा ठीक है, तो फिर इन दोनों की आप बता दीजिए। I'm a super dancer, dude. I'm just joking. No, he is such a sumbri dancer, na. You all have no clue. अनुराग दादा He's a- genuinely dances he really well. is a very good dancer. Yeah. और जिस बंदे के फिल्मों में म्यूजिक हमेशा अच्छा होता है, हमेशा म्यूजिक यूएसपी होता है. You can imagine what rhythm he has. ऐसे हर शादी के बारात में लोग यही बोलते हैं तो अच्छा डांस करता है, वो उतना ही डांस कर पाता। आप देखोगे शो पे नचाया है हम लोगों ने इन्हें. गीता के बारे में क्या बोलूं, शी माँ ही है, ये है ना माँ. मतलब she's super माँ. a superb dancer. She's see, there's some people who are perfect dancers and there are some people who have great style. She is both because I've seen her and I've seen her work, and she's somebody who has great expressions, and that for me always holds a lot more than being just a technically good dancer. क्या No, I बात- really- I don't- क्या बात I क्या don't- बात है, क्या बात है. अगर आप आज भी आप लोग गीता माँ को डांस करते हुए देखना चाहते हैं तो प्लीज कुछ कुछ होता है लगाएं. उसमें एक गाना है बहुत अच्छा परफॉर्म. Everybody Can I remembers? quit now? Because this boy, everywhere he goes, he keeps doing this. This Stop boy? it, Ritvik. हाँ जी. जी ये माइक चल नहीं रहा है मैम. हेलो आई एम मैं फुल ऑन टपोरी हूँ एक्चुअली. मैं चेंबूर की लड़की हूँ ना, तो अनिल कपूर एंड आई वी आर फ्रॉम चेंबूर. इमेजिन दिन था इज मी. दैट इज मी. Hello, my question is to the judges. Children are usually very innocent and filled with so much of talent. There are few minus points even they have, and you are there to guide them. So, what kind of difficulties do you face when telling them about their minus points, because they are so much of talent? Can I take this? Because I think we managed to tell them that things, we kind of, because I'm quite used to it, I still managed to put it across. We don't have a difficulty with the children, we have a difficulty with her. They have a difficulty with me because she tells the children off, and after that I tell her off. I'm like, And how then can after the children have understood and they're going, she calls them back. वो बच्चा समझ चुका है, वो जा रहा है. बेटा इधर आओ मेरा बच्चा. और ना बेबी वी आर वेरी सॉरी, हाँ मेरा बच्चा इधर आओ, ले मेरा बच्चा गोद में बैठा के फिर उसको आधा घंटा हमारा ज़्यादा करके शूट में टाइम इसीलिए जाता है और दूसरे बच्चों को मौका नहीं मिलता क्योंकि ये बच्ची रोना शुरू कर देती हैं. So yeah, we had a difficulty with her, not with the children. They are very nice. I They're think very I need understanding. psychiatric help after this show, really. I seriously have had a very difficult time on this show. जो मतलब audition शुरू किए बहुत मुश्किल था मेरे लिए. You तो have handled all of us ना अनुराग. You handled. तो when we work with Anurag is like the father. He's the captain of the ship. So he treats us like children. So he's used to it.
अनुराग शिल्पा, आप दोनों से मेरा सवाल है कि आए दिन सेलिब्रिटीज हमेशा कोई ना कोई ब्रांड एंडोर्स करते ही रहते हैं, और हाल ही में अभी एक है नया आप पहले? इधर यहाँ पर, कौन है आप? अच्छा उधर है। तो अभी हाल ही में गवर्नमेंट एक लॉ लेके आई है कि अगर किसी ब्रांड को एंडोर्स करते हैं आप और मिसलीड करते हुए पाए जाएंगे तो शायद एक्शन भी हो सकता है, क्या कहेंगे आप इस पे? मुझे इस बात का कोई डर ही नहीं है, क्योंकि मैं बहुत कॉन्शियस होके, बहुत कॉन्शियस होके अपने ब्रांड्स को एंडोर्स करती हूँ, और मैं कभी ऐसा कोई ब्रांड एंडोर्स नहीं करती जिसमें मैं बिलीव नहीं कर सकती और जो मैं खुद यूज़ नहीं करना चाहूँगी। हेलो, दिस क्वेश्चन। नहीं यार, आई एम अ लिटिल ओवर प्रोटेक्टिव, तो आई डोंट नो, कभी कभार मैंने बहुत सारे 4 साल और 5 साल के बच्चे आए हैं इस शो पे ऑडिशन देने के लिए, और मैं दंग रह जाती थी यार कि मेरा बच्चा तो इसका आधा भी नहीं कर सकता। ये बच्चे कैसे कर रहे हैं? सो नो, आई डोंट थिंक। वो भी थोड़ा सा टपोरी डांसर ही है मेरा बेटा भी, ही इज़ नॉट ट्रेन्ड, सो नो। गीता मैडम से पूछना चाहूँगा। हेलो, गीता मैडम से पूछना चाहूँगा मैं कि सुपर डांसर में आप सब लोग जो है डांस का कल ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो डांस का आज है उसका क्या? डांस का आज ही ढूंढ रहे हैं, आज को लेके हम उनको कल में डेवलप करेंगे, बिकॉज व्हेन वी सी पोटेंशियल इन देम, इसके लिए हमारे पास कोरियोग्राफर्स हैं जो ट्रेन करेंगे उन्हें। इससे और एक चीज़ है जो फ़ायदा हमें हुआ था, शायद मुझे हुआ था एज अ चाइल्ड, कि मेरे पास एक गुरु थी, उनकी वजह से जितना मैं सीख पाई और जो मैं आज हूँ उनकी वजह से हूँ। सो दैट्स एन अपॉर्चुनिटी दैट दे विल गेट। बहुत सारे बच्चे आज बहुत ही टैलेंटेड हैं लेकिन कल तक पहुँचते भी नहीं हैं क्योंकि उनके पास ट्रेनिंग नहीं होती है, एंड आई थिंक दिस प्लेटफॉर्म विल हेल्प देम डू दैट, क्योंकि ईच डांसर विल हैव देयर ओन कोरियोग्राफर, सो दैट्स द डिफरेंस। मैडम, आपको ये लगता नहीं कि मैं ही पूछ रहा हूँ आपसे, आपको ये लगता नहीं कि अपने भारत देश में अलग अलग प्रकार के डांस हैं? शास्त्रीय डांस आप देखेंगे, अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रकार के डांस होते हैं, तो आपको ऐसा लगता नहीं कि डांस की खूबसूरती खोते जा रही है? अभी आज जो मैं सुपर डांस में जो भी जितनी भी डांस देखा हूँ उसके अंदर मुझे शास्त्रीयता की झलक नजर नहीं आती। आप शो देखें, शो में शो देखना पड़ेगा उसके लिए। आप चौक जाएंगे, आपको कथक, भरतनाट्यम सब मिलेगा, बिहू भी मिलेगा, बिहू भी मिलेगा, दादा करते हुए भी दिखेंगे बिहू। हेलो, दिस क्वेश्चन इज फॉर द प्रोडक्शन हाउस फ्रेम्स टीम। हेलो, कैन यू टेल अस व्हाट आर द यूनिक एलिमेंट्स दैट यू इंट्रोड्यूस्ड इन द शो? वन फैट जज, वन डाइटिशियन। Actually, as we all know, the talent that we source out from this country is phenomenal. So the kids that you saw today and some of the kids who are going to be on the show are really par excellence. What we've also understood is maybe the kids need a bit of guidance from the start when they come on to the show and to the end of where they will arrive at. That's why the Guru Shishya element, which is something that we want to really harp on. बिकॉज हर एक बच्चे को कहीं ना कहीं तो एक ट्यूशन टीचर, एक स्कूल टीचर, एक कोई तो गाइडेंस लगता है जहाँ पे ही कैन होन द टैलेंट इन अ मच डिफरेंट मैनर, एंड दैट इज एग्जैक्टली द की दैट वी वांट टू डू इन दिस पर्टिकुलर थिंग. सो हर एक बच्चा जो आ रहा है बहुत ही टैलेंटेड है, पर उसके टैलेंट को और शार्पन करके और थोड़ा सा निखार करके ऊपर करना वो गुरु का काम होगा. दैट इज वाई द गुरु एंड द शिष्य जो बच्चा होगा दोनों साथ में डांस करेंगे, एंड दैट्स अ वेरी यूनिक एंड अ वेरी different point of this entire show. Shilpa ji, this question is for you. How will it help in strengthening the weekend strategy, so to say, with this show? I think this show and Indian Idol post that will be the gateway to weekend. We right now, if you look at it, Kapil is at 9. We are launching this show at 8, and once the show is through, we will have Indian Idol at 8. Talent show, which is a family show, which appeals to everybody in the family, will create a kind of, it's a gateway for weekend prime time, and it will consolidate us as the #1 family viewership channel on India on weekend at least. Yeah. शिल्पा जी, डाइटिशियन की बात अगर की है तो ऐसे हमने सुनने मिला था कि जो बच्चों की जो डाइट होती थी आप सेट पे इसका ख्याल रखते थे और आप मोस्टली वही हेल्दी फूड देते थे, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? ये है मेरे बच्चे सेट पे,
यार ये लाइव फेल करके रखी है सेट पे, छुप के खाना पड़ता है, पीछे पर्दे के पीछे जाके, वहाँ जाकर सब देखती हैं वो। कभी मुझे इनवाइट नहीं करते लंच टाइम पे। आप लंच करने नहीं लेती है, इनवाइट कहाँ से करेंगे? बाय द वे अनुराग बर्फी आ रही है आपकी नहीं कब आ रही है? दूसरी वाली खाने वाली मंगाई मैंने, डाइट वाली, खजूर से बना हुआ है बिना शक्कर। नहीं वाकई वो क्या होता है, बच्चों को देने का चॉकलेट रखा होता है साइड में, हम देते हैं शो में ऐसा। देते नहीं है, खुद खा रहे। मैं तो एक या दो ही खाता हूँ यार, ये मतलब पूरा चार मजा चार इन्होंने, दो इन्होंने। मतलब बच्चों को थे कुछ सिर्फ technically छह। मिलता नहीं, बच्चों को कुछ मिलता नहीं। हाँ I'm also saying मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं, मैं तो पीछे रहता हूँ, मुझे कोई बुला सोनी सोनी बहुत खर्चा कर रही है इनके चॉकलेट्स पे। अच्छा मैं इनसे पूछा मुझे क्यों लिया है शो में कभी, तो उन्होंने बताया सर बैलेंस करने के लिए। सो वो तो वो जज पैनल बैलेंस रहेगा, अदरवाइज मुझे पता नहीं मुझे क्यों लिया इन्होंने। गणेश आचार्य के पास बैठे थोड़ा पल्ला भारी हो गया। फिर डायरेक्टर मिले, डायरेक्टर तो राजकुमार संतोषी, फिर बाद में वो आदमी इम्तियाज जैसे लोग हैं, बीच में कोई है नहीं, बीच में मैं आता हूँ, तो करेक्ट बैलेंस हो गया सब। हेलो, मेरा प्रश्न प्रोडक्शन हाउस से है कि जो ये बच्चे ज़्यादातर जो एरोबिक्स और इस तरीके के जिम्नास्टिक टाइप के डांसेस कर रहे हैं, तो इसमें आप कि इनके मतलब ताकि इनको कुछ चोट ना लगे, इस तरीके का किस तरीके से आप ध्यान रख रहे हैं क्या? क्योंकि बच्चे हैं वो तो कर जाते हैं कुछ भी उनको बोला जाए तो। नहीं, ये जो कोरियोग्राफर्स हैं, जो गुरु हैं उनके, जो हमने सिलेक्ट किए हैं जो कोरियोग्राफर्स हैं, वो टेक्निक के साथ तो सिखाते हैं बच्चों को। उसमें कोई मेडिकल क्या बोलते हैं इमरजेंसी हो या कुछ ऐसा कुछ स्टंट हो या ऐसा कुछ हो जो बच्चा ना कर पाए, तो हम उस पर बिल्कुल ध्यान और या स्ट्रेस नहीं देते। इट इज़ डन विद कंप्लीट अमाउंट ऑफ ट्रस्ट एंड कंप्लीट अमाउंट ऑफ करेक्ट टेक्निक। सो दोनों को अगर आप चीज़ करोगे तो उसमें कोई बच्चे को या गुरु को भी they will never face any sort of medical issues on that one. और इस बात का मैं मेरा पहला कंसर्न यही था कि शूटिंग टाइमिंग्स, जब इनसे बात की बच्चे, लेकिन आई वाज सो इम्प्रेस्ड कि बच्चों को इतना ध्यान दिया जाता है थोड़े घंटे के लिए। अदरवाइज रियलिटी शो में क्या होता है, लगातार शूटिंग होती है, बच्चे थक जाते हैं, लेकिन इस शो में, इस यूनिट में हर एक बच्चों को सेपरेटली इतना ध्यान दिया जाता है एंड कोई भी बच्चा थका हुआ नहीं दिखेगा आपको। सो आई थिंक हाँ, इट वॉज इनक्रेडिबल द वे दे हैव हैंडल्ड। I think children shouldn't be subjected to anything that they don't want to do. And I think from that perspective, अगर आपका बच्चा डांस से इतना प्यार करता है और खुद जाना चाहता है, हाँ अलग चीज़ है, मेरा नज़रिया बदल जाता है अगर बच्चे को माँ बाप पुश कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं बच्चे पे कि जाओ कंपटीशन में हिस्सा लो और जीत के आओ एंड ऑल ऑफ दैट। आई थिंक दैट इज़ द ओनली टाइम आई वुड गेट अपसेट। बट ऐसा कोई बच्चा आया नहीं है जहाँ पे पेरेंट्स ज़्यादा ओवर एम्बिशियस होके उनको ढकेल रहे हैं परफॉर्मेंस देने के लिए, तो वी नेवर रियली कम अक्रॉस एनीथिंग लाइक दैट। और जैसे मैंने कहा, ऐसे आई थिंक 70% ऑफ द केसेस ऑन आवर शो जो कंटेस्टेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। आई थिंक इट कैन एक्चुअली बिल्ड देयर फ्यूचर, यू नो, क्योंकि टू सडनली बिकम अ सेलिब्रिटी ऑन टेलीविजन ओपन्स अप अ लॉट ऑफ एवेन्यूज़ फॉर देम। एक ज़रिया बन जाता है अर्निंग का भी। तो इट एक्चुअली, and today too, I mean, I'm saying like 10 years ago maybe it wasn't considered a great thing, but aaj to be on a dance reality show and to be able to win a show or even be on that show for a few weeks is a big thing, because उसके बाद आपके लिए बहुत सारे opportunities खुल जाते हैं। Okay. मुझे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है, हम जब शो में देखते हैं, इस उम्र के जो बच्चे इस शो में आ रहे हैं, उन्हें इस उम्र में ये पता रहना कि आगे जाके क्या करना बड़ा मुश्किल है। मैं तो 12वीं के बाद, ग्रेजुएशन के बाद समझा मुझे डायरेक्टर बनना है, तो ये दे आर टू यंग राइट नाउ। तो उनका अभी क्या एक्सपोजर मिले आए। हमारे वक्त पर रियलिटी शो नहीं होते, हम क्या जाते हैं, इंटर स्कूल फेस्टिवल, इंटर स्टेट फेस्टिवल, 26 जनवरी दिल्ली, सब लोगों से मिलते थे। तो बच्चे लोग उसी तरह से इसको लें, दे आर कमिंग
दे आर प्रोजेक्टिंग देयर टैलेंट और काफ़ी लोगों से मुलाकात हो रही है. ये एक्सपीरियंस लिया है कि उनको ज़िंदगी में हमेशा काम आएगा. इनिबिशन जाता है, कॉन्फिडेंस मिलता है. कहीं जाके आगे जाके लाइफ में कभी CEO बने तो प्रेजेंटेशन करने में भी ये कॉन्फिडेंस काम आएगा. तो ये इसके कई सारे फ़ायदे हैं. सिर्फ ऐसा नहीं कि डांस सीख के यहीं पे आके बॉलीवुड में ही डांसर बनना है. बच्चे इसमें से बहुत कुछ लेके जाएंगे. On 1st of October, which is our first gala, I'm not disclosing that this because it's part of the content. There's something very interesting for the kids. 1st October, we'll let you know. That's the first gala of, right? Yeah. This is 13 weeks, 14 weeks, 27 episodes of starting 10th of September. Yep. Starting 10th of September, Saturday and Sunday. We're at 8 p.m. Sony TV, everybody. Okay. So I think we should, yeah. What, anyone? Yeah, the judges. Which other dance show revolves around children right now on television? Where? It's not any. Is it going on right now? DID Kids? वही है producer, by the way, of that show also. So, Ranjit the Great. नहीं तो I would like to say that जहाँ तक TRPs की बात है, I don't know about the TRPs, लेकिन मेरा बेटा TV देखता नहीं है, allowed नहीं है, we're very very strict parents. 4 साल का है. But I would like him to, I would really honestly encourage him to watch this show. So this I think would be his first tryst with television, क्योंकि ये एक ऐसा शो है जो बहुत ही प्योर है. We've even taken care of the language we use with the children. क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है टीवी कंटेंट थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाता है बच्चों के लिए, एंड यू हैव टू रियली मॉनिटर व्हेन अ चाइल्ड इज वाचिंग टेलीविजन. तो आई वुड डेफिनेटली वेरी सेफली से एज अ पेरेंट के सुपर डांसर वुड बी द इंट्रोडक्शन ऑफ हिंदी टेलीविजन फॉर माई चाइल्ड. Wow. हो ही सकता है, बिकॉज डायरेक्टर तो हमेशा ढूंढते रहता है ना, पता नहीं कब कहाँ क्या मिल जाए. और आई थिंक आई एम ऑलरेडी इन लव विद ऑल दिस किड्स. दे आर सच प्योर सोल या सबके सब. कुछ ना कुछ तो होगा, देखते हैं इंशाल्लाह. हाँ पूछिए. ए ले 1-to-1 आएंगे ना तब बात करेंगे. 1-to-1 मैं हूँ. हाँ we'll talk 1-to-1 because I don't want to use this platform because we all are talking about this super dance show. Want me to attack him? No, we'll talk. मैं भाग नहीं रहा हूँ, मैं बात करूँगा. अभी 1-to-1 शुरू होगा ना, we'll talk about it. Chaliye, all right. So here we call it quits for all the questions, and इसके साथ we'll move on to the one-on-one interviews. Everybody, photo op. Yes, of course. आपको कैसे पूछ सकते हैं? Yes, माफ कर देना माँ से. Photo op, please, sir. Without the mic.
ऐसे लग रहा है कुछ पहने नहीं मैंने, इतना ही फ्रेम है। थोड़ा नीचे कर ले, घूम नीचे अरे यार लाइट नहीं आ रहा। I better wear this, I better wear something or not. I'm not wearing it. Can you stand in front of me? शिल्पा, आप पहली बार बच्चों का शो जज करने वाली है, कितना एक्साइटेड है, कितना नर्वस है शो को लेकर? आई थिंक प्रोमो से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि बहुत मज़े किए हम लोगों ने सेट पे, और हमारी केमिस्ट्री एक्चुअली बहुत अच्छी है। तो आई एम रियली एक्साइटेड कि मैं रोज़ सेट पे जाऊं और खूब सारी मस्ती करूं, और बच्चों से कितना कुछ सीखने को मिला है मुझे इस शो से, और मुझे लगता है कि लोगों को भी बहुत बहुत पसंद आएगा, क्योंकि जो बच्चे बोल जाते हैं ना कभी कभी, वो सोच के नहीं बोलते, तो उसमें वो जो कंटेंट मिलता है बहुत कमाल का होता है। इट्स रियली एक्साइटिंग। शिल्पा जी, जैसे आपने कहा कि आप अपने बच्चे को ये शो दिखाने वाली है, तो आप चाहती है कि आपका बच्चा भी फ्यूचर में डांस करे, ऐसी कोई आशा है आपकी? डांस तो करता है वियान, मैंने देखे हैं वीडियो, सुपर्ब करता है। Shut up. He's going to hate you after this show. गीता बोलती रहती है कि आई डोंट थिंक योर सन इज गोइंग टू लाइक यू, क्योंकि जब कुछ बच्चों को हम लोगों को ना बोलना पड़ता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। ना नहीं, हाँ भी प्यार से इतने ये करते शो हैं। की He's going to be very रोंदू jealous जज है, of you. रोंदू। मैं रोंदू जज हूँ, शी इज ए रोंदू जज। मुझे रोंदू जज करार कर दिया गया है। अनुराग जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके लिए कितना मुश्किल हुआ? हालांकि शिल्पा को इमोशनल हुआ है शो को लेकर, आपने भी पहले ड्रामेबाज किया है, तो क्या कहना चाहेंगे? आप तो काफ़ी कॉन्फिडेंस, बस मैं अपने वो क्या था वो फाड़ने की कोशिश कर। अच्छा हाँ। नहीं, बस मैं अपने गट फील के साथ जाता हूँ एज ए दर्शक, मैं अपने दर्शक, एक्चुअली मैं दर्शक को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जस्ट के कुर्सी में। जो मुझे अच्छा लगता है, जो नहीं लगता नहीं लगता। कई बार तकनीकी चीज़ें जो छोटी मोटी वो गीता हेल्प कर देती है, लेकिन आई जस्ट गो विथ माई फीलिंग कि डांस जो है इमोशंस है, अगर मतलब इट इज़ फेल्ट इन द डांस एंड आई विल ऑल्सो फील इट। जब फीलिंग नहीं होती है तब मैं मना कर देता हूँ। गीता मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? टेक्निकली अगर डांस की बात करें तो आपको ज़्यादा पता है डांस के बारे में इस शो को? ये ऐसा बोलते हैं कि मुझे ज़्यादा पता है, एक्चुअली इनकी नॉलेज डांस के बारे में काफ़ी अच्छी है। कन्फेटी है बाल पे, बस यही चलता रहता है पूरा दिन सेट पे, एंड शी इज़ रियली टेकन केयर ऑफ अस मोर देन द चिल्ड्रन। आई थिंक इट्स एक्साइटिंग कि हम इनके साथ रहें। ये सिर्फ अभी ये सब कर रही है, वहाँ पे सिर्फ खाना छीनती रहती हैं, खाना खाने के वांदे हो गए हमारे। नाम खराब होते हैं लेकिन एक चीज़ अच्छी आएगी इसमें से कि we will get one to enjoy the company of beautiful children, innocent children, their purity. We get to enjoy the company of each other, which is beautiful. Made I think really nice friends on the show, which is मैं beautiful. रिक्वेस्ट करूँ कि एक और मेल जज भारी पड़ते मेरे दोनों मेरे पे, तो इनको जब प्रोड्यूसर को मैंने रिक्वेस्ट किया कि एक और मेल जज मेरे साथ कर दे, मुकाबला नहीं कर पाता दोनों का। हाँ, थोड़ा सा वो लोग। इसके अलावा बहुत सारे डांसिंग के शो आ रहे हैं, हालांकि छोटे बच्चों के शो नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे डांसिंग के शोज हैं टेलीविजन पर। तो लगता है कि मुकाबला होगा या ऐसा कुछ, या फिर क्या दूसरे शोज में हम नहीं हैं जानी, हमारा शो देखिए। हाँ, शिल्पा जी, टैलेंट की बात करें तो बच्चों के टैलेंट की बात करें तो डांसिंग को देखा जाए और एक्टिंग को भी देखा जाए तो बहुत टैलेंटेड बच्चे हो चुके हैं। और बच्चों की मूवी देखा जाए तो बजरंगी भाईजान देख ली जाए और तारे ज़मीन पर, जितने भी बच्चों पे फिल्म बनी है सब सुपर हिट गई है, और वो बड़े एक्टर के साथ फिल्में बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता आगे चल के वो मतलब बच्चों को एज ए एक्टर लेना ज़रूरी हो जाए, एक्टर के साथ, बिग एक्टर के साथ? इतना लंबा सवाल क्या था? मतलब एक बच्चे को एक्टर के साथ लेना, चाइल्ड एक्टर शुड बी नेसेसिटी बिकॉज वैसा। हाँ, अभी वो तो स्क्रिप्ट के ऊपर है। ये क्वेश्चन मैं अनुराग जी की तरफ डायरेक्ट करती हूँ। क्या क्वेश्चन मुझे भी समझ में नहीं आया। तुम चाइल्ड एक्टर लेना जरूरी हो जाएगा? अभी जैसे कहानी हो गया, ऐसे नहीं कि हम चाइल्ड एक्टर लेना है करके कहानी ढूंढना शुरू करें, तो वो तो मापदंड नहीं होता है। अभी मैं अगली बोल देता हूँ, अभी ये प्लेटफॉर्म नहीं, जैसे मेरी अगली फिल्म है, मैं जब बर्फी जब स्क्रीनिंग हो रहा था, जब रिलीज़ हुई और जब वो दिखाई जा रही थी तो ट्रायल में, तब मुझे लगा कि सबको पसंद आएगा, मतलब इट इज़ फ्रॉम, बट मेरी बच्ची छोटी वाली उसको समझ में नहीं आया बर्फी, एंड शी वाज नॉट वेरी इम्प्रेस्ड। तो मुझे बड़ा दुख है यार, सब खुश हैं, वो मेरी बेटी खुद। तो मैंने सोचा अगली पिक्चर ऐसे बनाऊंगा ताकि वो भी, तो जग्गा बच्चों की पिक्चर है उसमें, तो जब मन करता है एक अंदर से स्क्रिप्ट आनी चाहिए, रिक्वायरमेंट होगा, करेंगे लोग। अनुराग सर, जैसे अभी आपने जग्गा जासूस, अरे मैं वहाँ तो स्टेयरिंग घूम गया है, वो बाद में करेंगे, इसको बात कर लेते हैं, अभी तीनों खड़े हैं। हाँ, शिल्पा, डांस में एक पार्ट ऑफ एक्सरसाइज है और योगा में एक एक्सरसाइज है। आपको अगर दोनों में से पहले किसी एक को चुनना पड़ा तो आप योगा
बताओ बताओ ये हमको Tell, चुनेंगे tell. योगा करने के लिए जो रोज ये हमको पिन करती रहती है। टेल गुड आइडिया। हाँ योगा या डांस, कम ऑन, नाउ इज योर, दिस इज परीक्षा की घड़ी। डांस करने से पहले मैं योगा करूंगी। सो डिप्लोमैटिक। करना पड़ेगा ना, वार्म अप के लिए यू हैव टू डू समथिंग, सो यू हैव टू डू योगा। She does yoga before coming on set also, and after going away from set. What also. rubbish. Yes, didn't she say it that day? What, बोल रही थी मुझे जाना है आज प्राणायाम। रात को, मतलब पूरा दिन प्राणायाम निकल गया प्राणायाम करना पड़ता है मुझे कभी कभी। हमारी वजह से। हाँ, हाँ हो गया Done? लव, Thank you. थैंक यू सर सामने आते हैं, सर सामने सर। ओके थैंक यू फोटो हो गया अब वेल मैं सच कहूँ तो मैंने शो ने मुझे चूज़ किया और मैं अपने आप को शुक्रगुजार मानता हूँ। आई एम रियली ग्लैड कि इस शो ने मुझे चुना, क्योंकि सुपर डांसर एज अ किड्स डांस रियलिटी शो अब आप देखेंगे तो 3 साल के बाद कोई ऐसा शो है जो बच्चों के डांस को लेकर आ रहा है, तो आई थिंक अपने आप में वही अलग है। प्लस सोनी के साथ ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है। प्लस आप देख रहे हैं कि आई थिंक ये भगवान की मेहरबानी है, अल्लाह ताला का करम है, या आप देखें तो बस दुआ है मेरे लोगों की जो मुझे प्यार करते हैं, मेरे फैंस की, कि मुझे बैक टू बैक अच्छा काम करने का मौका मिल रहा है, अच्छे चैनल्स के साथ, बड़े चैनल्स के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, तो कोई क्यों ना करेगा। सो आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली व्हाट सुपर डांसर इज़ ऑल अबाउट। और मुझे एक बार और मौका मिला है अपने आप को शोकेस करने का और मस्ती करने का स्टेज पर, जस्ट टू बी हु आई एम। इसके अलावा 3 सुपर जजेस हैं इस शो में, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि मैं तीनों के साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे काम कर चुका हूँ और तीनों के साथ मेरी एक पर्सनल ट्यूनिंग है, तीनों को मैं अलग से बहुत अच्छे से जानता हूँ। सो आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली जो एक वो चीज़ है जो मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, इस बिकॉज इस शो में आपको वो देखने को मिलेगा कि तीनों जजेस और मेरी ट्यूनिंग जो हम एक्चुअल रियल लाइफ में है, क्योंकि मैं तीनों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। सो आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन। सो या जब भी आप एंकरिंग करते हो तो क्या एक चीज़ ऐसी होती है जिसको आप फॉलो करना पसंद करते हैं या फिर फॉलो करते हैं एंकरिंग के मामले में? कि वो चीज़ करूँ जो मैंने पहले कभी ना की हो। ये एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है मेरा जो मैं हमेशा अप्लाई करता हूँ। जो मैं पहले कर चुका हूँ वो मैं फिर से कभी ना करूँ, क्योंकि मैं ही अगर वो चीज़ दोबारा करता हूँ तो मुझे लगता है यार ये तो मैं पहले कर चुका हूँ। तो देयर हैज़ टू बी समथिंग डिफरेंट एवरी टाइम। तो हर बार अपने कैरेक्टर्स में अलग तरीके से या फिर होस्ट करने का अलग तरीका या मस्ती करने का अलग तरीका, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं जिनको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। सो दैट्स व्हाट माय नैक इज़। तो ऋत्विक का बड़े पर्दे के लिए क्या ख्याल है? ख्याल तो बहुत सुनहरा है और आशा भी बहुत अच्छी है, एंड होपिंग फॉर द बेस्ट टू हैपन, एंड बड़ा पर्दा भी हमारा इंतज़ार कर रहा है, एंड इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो भी हो जाएगा। सो थैंक यू। ऐसा कोई पर्टिकुलर जॉनर है जिसमें आप काम करना चाहेंगे? नहीं यार, आई थिंक मोर देन जॉनर, आई थिंक कोई एक अच्छी स्क्रिप्ट अगर हो ना तो वो मेरी प्रायोरिटी रहेगी बजाय जॉनर की कि यार ये जॉनर नहीं करना है या वो जॉनर नहीं करना, बट एक स्क्रिप्ट इज़ व्हाट फॉर मी विल बी द डिसीजन मेकर। सो या दैट्स अबाउट इट। या थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।